A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a very important topic of the class 12B accountancy, that is an accounting treatment related to the not-for-profit organization. You know very well, when any kind of the not-for-profit organization prepared it's the financial statement at the end of the accounting year. So firstly they prepared the receipts and payment account. Thereafter it prepares income and expenditure account, and number third is the preparation of the balance sheet. So when any organization prepared the income and expenditure account with the help of the receipts and payment account, so firstly in this situation a lots of the adjustment becomes very important. Out of them, the first and very popular adjustment and very popular example related to the preparation of the at the time of the preparation of the income and expenditure account, that is in the first one जिसे हम लोगों ने already last class में discuss कर दिया है, that is in entrance fees, कि हम कैसे entrance fees को in the different situation we will shown in the income and expenditure account. So in this video, firstly we are talking about the accounting treatment of the specific reserves. So इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे what are the accounting treatment of specific fund. First of all, you know very well all the types of the not-for-profit organization maintain the various types of the specific fund, like prize fund, tournament fund, endowment fund, and the purpose beyond the creation of the such type of the specific fund to meet the specific liabilities related to the specific fund. For example, if any organization provides the annual prize to its member or to the person which works a great work for the society. So in this situation, organization spends a lots of money to provide a prize to such a person or such an institution. So in this situation, organization prepared the prize fund to meet the expenses and account responsibility regarding the giving an prize. Okay. So how NPO records such of the specific fund in the financial statement of not-for-profit organization? Let's see it. Firstly, we see the effect of such a specific fund in the balance sheet of the not-for-profit organization. So this is a sample of the balance sheet, and suppose any organization prepared a specific fund like a prize fund or tournament fund. So अगर कोई organization ने tournament fund बनाया, so it will be shown in the liability side of the balance sheet. So tournament fund कहाँ शो करेगा? In the liability side of the balance sheet. और इस फंड के पैसे को you know very well ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इन्वेस्ट कर देता है. तो it becomes टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये हो गया. अब you know very well टूर्नामेंट फंड जो हमने बनाया है उसमें कई लोग डोनेशन भी करते हैं. ठीक है, तो कहीं से डोनेशन मिल गया रिगार्डिंग टूर्नामेंट फंड. सो डोनेशन रिसीव्ड हुआ, या हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पे यू नो वेरी वेल उसकी जो टिकट्स होंगी, जो लोग ऑडियंस आएगी देखने, तो उसकी टिकट जो सेल होगी वो भी इनकम है, सेल ऑफ टिकट्स. तो जो भी आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से इनकम हुई उसे आप प्लस कर दोगे, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा.
टोटल इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब आप टूर्नामेंट कराओगे तो टूर्नामेंट पे खर्चा होगा, टूर्नामेंट एक्सपेंस, ऑल टाइप्स ऑफ द एक्सपेंस, उसे आप यहां से माइनस करोगे। ओके, और इसे कहां शो करोगे? इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब एक बात और याद रखिएगा, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द एक्रूड इंटरेस्ट ऑन द टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो उसे हम यहां पे भी शो करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको इसमें ऐड करके शो करें। सो ये आपका बन गया बैलेंस शीट व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन shows the specific fund in the balance sheet of the NPO. ओके, सो आप इसी को ध्यान में रख के हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन विच आर टेकन फ्रॉम द योर बुक एंड द क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट्स बी सॉल्व इट. द क्वेश्चन नंबर 4 इज, एंट्रेंस फीस तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको लेकर उतना प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इज दैट कि जो सेकंड हमारा स्टेप है, दैट इज स्पेसिफिक फंड को कैसे हमें शो करना है बैलेंस शीट में, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है. तो द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द बुक आर, सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ चेतक क्लब जयपुर एज एट 31st March 2019. Price fund 80,000, interest on price fund investment 6,000, price given 10,000, price fund investment on 1st April 2018 60,000, donation for price fund 25,000, and you have to prepare the balance sheet of the not for profit organization. So in this situation, फर्स्टली हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? चेतक क्लब. चेतक क्लब एंड द डेट इज जयपुर एज एट 31st March 2019. और बैलेंस शीट का हमने बना दिया फॉर्मेट. लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसको शो करते हैं ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को इन द बैलेंस शीट ऑफ द चेतक क्लब. The first will be a price fund. तो कहां शो करेंगे? In the liability side of the balance sheet. Price fund and the value is 80,000. Second will be a interest on price fund investment. तो वो उसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. Interest on price fund investment and the interest will be a 6,000. Price given, ये क्या हो जाएगा? माइनस. Price given, that is at 10,000, minus हो गया. Price fund investment, it will be shown in the asset side of the balance sheet, and price fund investment will be a 60,000. और है आपका donation for price fund. डोनेशन मिला प्राइस फंड के लिए 25,000. अब आप क्या करो? नेट वैल्यू निकाल लो. एसेट्स में आपने 60,000 लिखा है, वो सही है आंसर. लायबिलिटी में कितना आंसर आएगा? 80, 86, 100, 86 एंड 25 कितना हुआ? 115, 1,05,000, 1,01,000. कुछ चेक करके देख लो आप लोग. 8, 31, 8 और 6, 86, 25 is 1, 11, 10 minus 1 to 101. So you can see that how we will show the price fund in the liability and asset side of the balance sheet.
Now we are moving to the next question. Let's we move to the one more question which are related to the preparation of the balance sheet and which are related to the presentation of the specific fund in the balance sheet. But अभी मैंने आपको बताया था accrued interest का कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, वो भी देख लीजिए आप लोग. एंड आई रिक्वेस्टेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करिए. वो इसीलिए छोड़ा जा रहा है ताकि आप घर पर उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए. ये है क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 will be presented in the financial statement of Ashoka Club. Aishko Club, sorry. So this is in question number 6 and the balance sheet of what? Ashko Club, and date is 31st March for the year ended 31st March 2018, and this is in format liability amount, assets amount. ये देखिए मैंने बैलेंस शीट बना लिया अच्छे से. ओके, अब हम इसमें वैल्यूज को शो करेंगे. कैसे वैल्यूज को शो करेंगे? सो पहला आइटम दिया है टूर्नामेंट फंड 1,50,000, तो उसे लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे. एंड द वैल्यू ऑफ टूर्नामेंट फंड इज 1,50,000. सेकेंड है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000, तो इसे हम लोग कहाँ शो करेंगे? एसेट साइड में. जनरली जितने का फंड होता है उतने की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है, उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं होता. ठीक है. अब क्या दिया हुआ है उसके अलावा? इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. आपको इनकम हुआ तो इसको अंदर पहले लिखना चाहिए था, इसको भी इनर कॉलम में लिखना चाहिए था, मिस्टेक्स हुई है. इनकम हुआ टूर्नामेंट फंड से, तो आप इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम यानी इंटरेस्ट मिला टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 18,000 रुपए का. नीचे लिखेंगे का एडजस्टमेंट गिवन है. एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000, यानी अभी 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना बाकी है. तो हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है? 2. तो पहला ये चीज ऐड होगी यहाँ पर, एक्रूड इंटरेस्ट मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, तो ये हो जाएगा 1,56,000. और यहाँ पे भी वो क्योंकि यहाँ पर जो हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, वो टोटल इंटरेस्ट ऐड करते हैं, चाहे वो पैसा मिला हो चाहे स्टिल मिलना हो. तो ये जाएगा 24. नेक्स्ट है आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000. तो ये माइनस हो गया. कितना वैल्यू दिया है? 12,000. सो 150 12 24 12, तो ये हो जाएगा 162. सो 162 will be shown in the liability side of as a tournament expense, a tournament fund, and in the asset side the tournament fund investment will be a 1,56,000. Yes. So please note down this solution in your copy properly. Now we are moving to the next topic, and the next topic which are related to the preparation of the financial statement of NPO. The next topic which are related to the very important topic of the adjustments related to the preparation of the financial statement of not for profit organization, that is in subscription. हम लोगों ने ऑलरेडी 2 तरह के एडजस्टमेंट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लिया है. फर्स्ट इज एंट्रेंस फीस, सेकंड is a accounting treatment of the specific fund. So in this
time, let's we move to the third and very popular adjustment, that is an subscription. What is subscription? Firstly, you know very well, subscription is a main revenue. It is an amount received from member of NPO, यानी कि ये एक अमाउंट होती है जो रिसीव करता है ऑर्गेनाइजेशन, कहां से? मेंबर से, एनपीओ के मेंबर से इसे रिसीव किया जाता है. एंड इट विल बी शोन इन द, यू नो वेरी वेल, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम. ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है फॉर एनी एनपीओ. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा एनपीओ से रिलेटेड. दैट इज एन सब्सक्रिप्शन जो है वो एक अमाउंट रिसीव्ड होता है, एनपीओ रिसीव करता है किससे? अपने मेंबर से, और ये एनपीओ की, किसी भी तरह के एनपीओ की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है. एंड इट विल बी शोन इन द, you know very well, it will be shown in the first debit side of receipts and payment account, and second it will be shown in the credit side of income and expenditure account. The fact is that, फैक्ट ये सब्सक्रिप्शन को लेकर कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो डेबिट साइड में हम सब्सक्रिप्शन की वैल्यू दिखाते हैं या फिर इनकम रेशियो के क्रेडिट साइड में जो दिखाते हैं, दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन को शो करते हैं, और यहां हम लोग क्या करते हैं? करेंट ईयर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन शो करते हैं. दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है, और ये अपनी कॉपी में नोट कर लो कि जो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग शो करते हैं सब्सक्रिप्शन की वैल्यू, इट विल बी रिलेटेड टू, इट विल बी अ अमाउंट विच आर टोटल सब्सक्रिप्शन, चाहे वो करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर का हो. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट्स में हम वही सब्सक्रिप्शन की वैल्यू शो करते हैं विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर. सो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए प्रॉपर टेबल फॉर्मेट किया जाता है विच आर रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन. फर्स्ट इज फॉर्मेट इज अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. ओके, उसमें हम लोग ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ऐड करते हैं एडवांस एट एंड, सॉरी एडवांस एट बिगिनिंग, और लेस करते हैं एडवांस एट एंड. तो ये पूरा सीक्वेंस अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है, और ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी चाहिए. ठीक है, तो उसको पहले नोट डाउन करिए अपनी कॉपीज में, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक. So you can see that this amount will be known as an amount credited to income and expenditure account. और दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है कि जो अमाउंट रिसीव होता है ड्यूरिंग द ईयर, इट विल बी शोन इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और जो ये वैल्यू होती है इसे हम लोग शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसा मैंने लिखा है अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दोनों में डिफरेंस यही है, लेकिन जो इसमें कई सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, आउटस्टैंडिंग एट बिग एंड, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, एडवांस एट बिगनिंग, एडवांस एट एंड, इन सब का अपने में कोई ना कोई रिलेवेंसी है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है. इसको कहाँ शो करते हैं? तो उसको आप याद रख लो बैलेंस शीट बनाते हैं. जो बिगनिंग ईयर है इट विल बी नोन एज एन करेंट, इट विल बी नोन एज एन प्रीवियस ईयर. इसका मतलब है प्रीवियस ईयर का वैल्यू, और जो एंड की वैल्यू गिवन है इसको हम लोग बोलते हैं करेंट ईयर. मतलब कि
जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है या एडवांस एट बिगनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर का अमाउंट। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का एडवांस। और ये आउटस्टैंडिंग एंड या एडवांस एट एंड जो है, एंड है, दिस इज नॉट, ये क्या होता है, करंट ईयर की चीजें होती है, यानी करंट का आउटस्टैंडिंग और करंट का एडवांस। ओके। और जो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीपेड का एडजस्टमेंट होता है, उसके लिए भी बैलेंस शीट बनता है। ठीक, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसे हम एसेट साइड में शो करते हैं, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है उसे हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी भी नोट कर लीजिए। ठीक है, now we are moving to the question number 8 which are related to the subscription. Okay, so please see the question number 8 very carefully. As per the receipts and payment account for the year ended on 31st March 2017, the subscription received was 6 lakh. Additional information given is as follows. Subscription outstanding on 1st 4 2016, that is 60,000. Subscription outstanding on 31st March 2017, it's 40,000. Subscription received in advance on 1st 4 2016 is 32,000, and subscription received in advance as on 31st March 2017 is 38,000. Ascertain the amount of subscription for the year 2016-17 and show how relevant item of subscription will appearing in opening and closing balance sheet. So ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है इन दिस क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे चीजों को तो कैसे हम शो करेंगे, ये देखिए आपके पास वर्किंग्स हैं। ठीक है, मैंने वर्किंग्स को नहीं रफ किया। अब आप इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, 6 लाख, और आपको फाइंड आउट करना है ये वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करो, इसमें आउटस्टैंडिंग इन एकदम क्लियरली दिया है 31st मार्च 2017 एंड आउटस्टैंडिंग बिगनिंग इज 1st 4 2016 and advance at beginning is 1st 4 2016 and advance at end is 31st March 2016. So date is already given कि बिगनिंग की डेट क्या है, एंड की क्या डेट है। सो अब हम इसको इसमें प्रॉपर्ली अगर नोट डाउन करें तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज इन 40,000। तो आप इसमें ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग कितना दिया है 60,000, इसको क्या करोगे माइनस। एडवांस एट बिगनिंग कितना है 32,000 और एडवांस एट एंड कितना है 38,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरी तरह से, सो यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब आप इसको पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड द आंसर इज 5,74,000। और उसको कैसे बैलेंस शीट में शो करना है, तो उसके लिए पहले बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड व्हाट एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको पता ही है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट में शो करते हैं। सो बाय सब्सक्रिप्शन विल बी 5,74,000। और जब आप इसमें दो बैलेंस देखो, बिगनिंग का अलग वैल्यू है, क्लोजिंग का अलग है, तो आप इसमें बैलेंस शीट बनाओगे। एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट कब की, 31st मार्च 2016 या 1st 4 2016, उसकी बैलेंस शीट अलग बनेगी। तो 2001 4 2016 का आउटस्टैंडिंग कितना है 60,000
So outstanding subscription is 60,000 and advance subscription is 32,000. देखा, ओपनिंग बैलेंसेस को, ये दोनों को हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट में शो किया। और ये जो 2017 एंड 2017 है, ये एडवांस, ये करंट ईयर का है, तो उसको हम लोग किस में शो करेंगे, बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर। मार्च 2017 में शो करेंगे। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग है वो फिर वैसे ही एसेट्स में, और एडवांस किस साइड शो करेंगे, लायबिलिटी। ठीक है, वैसे ही शो करना है, बट वैल्यूज विल बी चेंज। वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी वैल्यू एडवांस सब्सक्रिप्शन की, एंड की 38,000, और आउटस्टैंडिंग की कितनी हो जाएगी, एडवांस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। दिस इज एन योर पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट, एंड दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर बुक। तो अच्छे से आप लोग इस आंसर्स को अपने बुक में, कॉपी में नोट कर लीजिए, और एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस को गैप देने के बाद। सो आई रिक्वेस्टेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू फाइंड आउट कि आपकी डिफिकल्टीज कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन फ्री टू आस्क मी। आइए एक क्वेश्चन और मैं आपको शो कराता हूं, एंड दिस इज एन क्वेश्चन नंबर 9। और अब आप देखो, इसमें धीरे धीरे एडजस्टमेंट बढ़ता जाएगा। द क्वेश्चन नंबर 9 इज चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव 6,50,000 बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31st March 2017. Subscription received in advance 31st March 2017, that is an advance retained 10,000. Outstanding on 1st/4/2016, it is an outstanding beginning. बट इसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 60,000 वे रिसीव ड्यूरिंग द 16-17, जिसमें से 16,000 रुपये हमें क्या हुआ है, इस साल मिल गया है। यानी कि 20,000 बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग था, लेकिन सिर्फ मिला कितना है, उसमें से 16,000 ही मिला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2016 is 7,500 and subscription outstanding for 16-17 is 25,000. So when you prepare the income and expense account and balance sheet and whatever according to these questions, तो हमें values बस गायब करनी और डेट गायब करनी, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में डेट इज डिफरेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये वैल्यू माइनस किया, इसमें भी 2 वैल्यूज गिवन है। अब आप ध्यान से देखना, मैं डेट गायब कर रहा हूँ चीजों में, एंड प्लीज सी द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। सबसे पहले आप देखो इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, 6,50,000, और क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, यानी एट एंड का सब्सक्रिप्शन कितना था, 10,000, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑन 1st/4, शुरू का आउटस्टैंडिंग कितना था, टोटल था 20,000, जिसमें से आपको मिला कितना है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था, 20,000, ये बिगिनिंग का, ये एंड का। सो 20,000 आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बट आपको मिला कितना है, सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए मिला है, तो यहां से माइनस भी कितना होगा, 16,000। ध्यान से देखना, 20,000 में मिला 16,000, अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है, 4,000। तो जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालोगे तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 4,000। उसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है, 7,500, और इसमें से आप क्या कर दोगे, एडवांस का सब्सक्रिप्शन 7,500, ठीक है, इसको आप ऐड कर दोगे। सो 7,500 आपने बिगनिंग का था, और एडवांस एट एंड आपका दिया है क्वेश्चन में
एडवांस एट एंड कितना है 7500, तो उसको हमने लिख दिया, नहीं बिगनिंग आउटस्टैंडिंग था ना, वो एडवांस था। उसके बाद है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 25,000, इस साल का है 2016-17, तो ये 25,000 रुपए आपका भी करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग। तो ये आपकी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई, 29,000, 10,000, और उसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दी, तो ये हो गया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बिगनिंग केवल कितना था 16,000 रुपए, वो हो गया। एडवांस एट बिगनिंग कितना था 7,500 रुपए, यस, एडवांस एट बिगनिंग ऐड होता है, और एडवांस एट एंड कितना है आपका, एडवांस एट एंड है 10,000 रुपए, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे सो यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर, सो प्लीज इसको मैच करा लीजिएगा कि आंसर इज करेक्ट और नॉट। मैं अभी आंसर नहीं निकाल रहा हूं, ओके। सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।